the casting shrinkage is compensated by what? तो casting shrinkage होती compensate होती by thermal expansion, by hygroscopic expansion and by wax expansion, by all of the above, all right? Next, the passivating layer on the alloy is dissolved completely by what? Passivating layer is on the alloy, on the surface of alloy is completely dissolved by potassium fluoride. Alright, aluminium, chromium and titanium have high affinity for oxygen, so they form a protective oxide layer on their surface which prevents further oxidation and corrosion. This is called as passivization. For soldering these alloys, the passivating film should be dissolved first. So potassium fluoride, it is used as a flux material that dissolves the passivating film so that the solder can wet the parts. And there is a strong weld that is present on the metal. Next, flux used in casting for flux is used for removing the oxide layer. अभी हमने बात की थी, ठीक है. Now, flux is a compound that is applied to the metal surface that dissolves the formation of oxides or the formed oxides that are undesirable substances that may reduce the quality or strength of soldered or brazed area. There are three types of fluxes according to primary purpose. तीन type of flux होती हैं according to primary purpose. Type 1, Type 2 and Type 3. ठीक है. Type 1 जो होती है that is surface protection flux. It covers the metal surface and prevents the access to oxygen so that no oxides can form. ठीक है, कवर कर देता है मेटल के सरफेस को और प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन, कोई भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि कोई ऑक्साइड ना बन पाए. टाइप 2 जो होती है दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट. इट रिड्यूसेस एनी ऑक्साइड्स प्रेजेंट एंड एक्सपोजेस क्लीन मेटल. क्लीन मेटल एक्सपोज करता है और कोई भी ऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो उसको रिड्यूस कर देता है. थर्ड इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट डिजॉल्व्स एनी ऑक्साइड प्रेजेंट एंड कैरीज देम अवे. dissolves any oxygen and carries that away. Flux for use with noble metal alloys are generally based upon boric acid, boric anhydride and borax. Chromium oxides that form on the base metal alloys are more stable, and fluoride containing fluxes are used as solvents to dissolve chromium, to dissolve nickel and to dissolve cobalt oxides. Next, gypsum which shows least setting expansion is which type of gypsum? देखो टाइप 4 जिप्सम जो होता है दैट शोज लीस्ट सेटिंग एक्सपेंशन. Selection of type of gypsum products to be used is influenced by their properties and application. The ideal requirement of gypsum products to be used in final cast materials comprises of high micro surface or high micro hardness to withstand scratching upon the dental restoration preparation. A high compressive strength is used to resist manipulation force. High compressive strength is used to resist the manipulation force during laboratory steps. Moreover, the minimum setting expansion, that is maximum dimensional stability, to possess accurate fitting of the final dental restoration is an ideal property for the gypsum product. ठीक है. Improved stone, that is type 4 gypsum, that is used to allow high compressibility strength in addition to high accuracy due to the setting expansion when compared with other gypsum products. ठीक है. Type 4 जो होता है that is high strength, low expansion. High strength, low expansion. Next, the thermal energy needed to convert solid to liquid. Solid से liquid में जो convert करने के लिए thermal energy लगती है उसको क्या बोलते हैं? It is known as latent heat of fusion. Alright. The energy that is required to convert a solid melting point into liquid is called as latent heat of fusion. Solid को हम melting point तक लेके जा रहे हैं ताकि वो liquid में convert हो जाए. This heat required, it is known as latent heat of fusion. Next, HEMA, HEMA, it alters the function of which of the following? HEMA जो होते हैं they alters the function of macrophages. देखो HEMA होता है 2-hydroxyethyl methacrylate. 2-hydroxyethyl methacrylate. ये बेसिकली साइटोटॉक्सिक होते हैं and they are immunomodulator monomers that are released from resin based dental materials. Macrophages पे क्या इफेक्ट होता है इनका? They decrease the phagocytic activity, they increase the altered cytokine resistant. ठीक है, मतलब inflammatory imbalance को increase करवाता है. ठीक है, और they decrease cell viability in higher concentration, जिससे कि ये फाइनली जो हमारे macrophages हैं उनको मार देता है. नेक्स्ट, द रिलेटिवली ब्लैक एंड वाइट शेड जो है इन द गिवन स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? ब्लैक एंड वाइट का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज वैल्यू. ऑलराइट. जो ह्यू वैल्यू क्रोमा 3 चीज़ें होती हैं. ह्यू जो होता है वो दैट इज़ द डोमिनेंट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन या ब्लू जो भी कलर इसमें दिख रहा है दैट इज़ डोमिनेंट कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ ह्यू. वैल्यू आती है रिलेटिव डिग्री ऑफ लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ द कलर. तो वो हमारे ब्लैक की शेड से रिप्रेजेंट करते हैं.
ठीक है। क्रोमा इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब सेंटर से कितनी दूर को हम सैचुरेट करवा रहे हैं, दैट इज नोन एज क्रोमा इन दिस डायग्राम। नेक्स्ट, एन इनले वैक्स इज सॉफ्टन एंड मोल्डेड इन अ हॉर्स शू शेप। इनले वैक्स सॉफ्ट कर दी और मोल्ड कर दी इनटू अ हॉर्स शू शेप। प्लेस इन हॉट वाटर, व्हाट चेंज विल अकर आफ्टर 24 आवर्स। देखो, इट विल पार्शली अटेन इट्स ओरिजिनल शेप, बट जो उसकी वैसी शेप होगी वो थोड़ी सी ऑल्टर हो चुकी होगी, ठीक है। द वैक्स इज बेंट इनटू अ हॉर्स शू शेप, द इनर मॉलिक्यूल्स आर अंडर कंप्रेशन एंड द आउटर मॉलिक्यूल्स अंडर टेंशन। क्योंकि हॉर्स शू शेप में बेंट करा तो अंदर वाले मॉलिक्यूल कंप्रेशन में, बाहर वाले टेंशन में, ठीक है। वंस द स्ट्रेसेस आर ग्रेजुअली रिलीव्ड एट द रूम टेम्परेचर, द वैक्स टेंड्स टू रिकवर इट्स इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। अगर वैक्स को फ्लोट किया हमने रूम टेम्परेचर वाटर पे फॉर नंबर ऑफ आवर्स, द हॉर्स शू शेप विल ओपन, ठीक है। क्योंकि टेंशन वाला जो स्ट्रेस है वो अपनी तरफ खींचेगा और कंप्रेशन वाला भी इसको अपोजिट साइड पे धकेलेगा, ठीक है। सो इट विल टेंड टू ओपन अ लिटिल बिट। Next, a 42-year-old male patient came to the Department of Periodontology and Oral Implantology with the chief complaint of patches of darkened gums in comparison to adjacent pink gums. The hyperpigmented lesion was present only in the mandibular gingiva involving the marginal interdental attached gingiva from the distal aspect of 3-2 to the distal aspect of 4-4. Okay. The lesion was blackish blue in color with irregularly raised borders, clearly demarcation from the ascent clinically normal gingiva and confined within the limits of the attached gingiva. The surface appeared wrinkled, proliferative and granular. What is the diagnosis? This is malignant melanoma. ठीक है. Next, in a community health program where brushing is being demonstrated, each child is called in front and asked to demonstrate a brushing technique. ठीक है. So what is this method of teaching the children? This is learning by doing. हम कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में हर एक बच्चे को आगे ला के किसी एक बच्चे से डेमोन्स्ट्रेट करवा के दिखा रहे हैं. दिस इज लर्निंग बाय डूइंग. नेक्स्ट, फर्स्ट केस ऑफ डिजीज encountered the investigator in a community. It is known as what case? पहला केस जो इन कम्युनिटी में कोई इन्वेस्टिगेटर एनकाउंटर करता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स केस. Next, the level of prevention that aims to reduce the incidence of the disease is which level of prevention? It is the primary level of prevention that aims to reduce the incidence of disease. Okay. Next, Keyes triad ने क्या explain किया था? KEYES triad explains what? It explains the initiation of caries. ठीक है. It is the uniformly agreed that caries cannot occur without microorganisms. This was demonstrated in 1960 by Keyes, KEYES, by an experiment on hamsters. Next, a 7-year-old child is receiving 0.25 milligram of fluoride from drinking water daily. What should be the additional amount of fluoride that should be given for an optimal action of fluoride? तो जो देना चाहिए बच्चे को that is 0.5 milligram per day. Okay. मतलब टोटल कितना हुआ है, इतना हमें सप्लीमेंट और देना है और 0.25 हम ये बच्चा जो है वो पानी से ले रहा है. सो 0.5 प्लस 0.25 दैट इज 0.75 मिलीग्राम्स पर डे इज द आइडियल डोज. नेक्स्ट, एज पर द ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल, द स्टेज इन विच द पर्सन इज थिंकिंग ऑफ चेंजिंग इज नोन एज विच स्टेज? ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल के हिसाब से अगर बंदा सोचने लग पड़ा है कि वो उसे चेंज करना है, देन इट इज़ द स्टेज ऑफ कंटेम्पलेशन. ठीक है, मतलब ही इज़ बिगिनिंग टू थिंक अबाउट चेंजिंग. 5 बेसिक स्टेजेस हैं. फर्स्ट इज प्री कंटेम्पलेशन, मतलब कि वो खुद को मैं चेंज कोई करना ही नहीं चाहता, वो अवेयर ही नहीं किस चीज़ के बारे में. कंटेम्पलेशन मतलब कि वो सोच रहा है कि चेंज होना है. प्रिपरेशन मतलब उसने पहला एक्शन ले लिया, पहली बीड़ी छोड़ना शुरू कर दी. एक्शन मतलब कि उसने अब एक्शन ले लिया और उस एक्शन पे अमल कर रहा है, उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है. मेंटेनेंस की वो फाइनल जो उसने एक्शन लिया उसका जो डिज़ायर्ड बिहेवियर उसको मेंटेन कर रहा है. नेक्स्ट, अनोवा टेस्ट इज़ यूज फॉर व्हाट? इट इज़ यूज टू कंपेयर मीन इन 3 और मोर ग्रुप्स. ठीक है, जो अनोवा टेस्ट होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. सबसे पहली चीज़ वो होती है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1880 से 1920 के बीच में द फेज वॉज दैट वॉज डिजीज कंट्रोल फेज. इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके. चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स इन पब्लिक हेल्थ. फर्स्ट वॉज डिजीज कंट्रोल फेज, ये डिजीज़ को रोकना है. 1880 to 1920. Health promotional phase, that was 1920 to 1960. Okay. Social engineering phase, that was 1960 to 1980. Social engineering phase 60 से 80 के दशक तक. Then health for all, सबके लिए health phase, that was from 1981 to 2000 AD. Okay. 1981 से 2000 तक health for all.
सोशल इंजीनियरिंग फेज फ्रॉम 1960 टू 1980 और 1920 टू 1960 वॉज हेल्थ को प्रमोट कर रहे थे कि हेल्थ बनाना भी ज़रूरी है, हेल्थ मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और 1880 टू 1920 डिजीज़ कंट्रोल फेज था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एम्स इन करेक्टिंग द इम्बैलेंसेज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबली प्रोवाइडेड टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज में आते हैं PMSSY, दैट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एम्स एट करेक्टिंग द इम्बैलेंसेज इन अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड फैसिलिटीज इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन जनरल, ऑगमेंटिंग द फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन अंडर द स्टेट सर्व्ड in particular. ठीक है, sharp lancinating pain on the right side of the face not resolved by analgesic is most probably due to what? Not resolved by an analgesic, lancinating type of pain. Okay, right side में क्या रहा है? Unilateral है, so it is mostly trigeminal neuralgia. ठीक है, now next, true regarding Klinefelter syndrome is what? It is infertility in males. Klinefelter syndrome में super female हो जाती है, that is XXY, or we can say it is a super male. Alright, Klinefelter syndrome, it is genetic condition in which the boy is born with the extra copy of X chromosome. Klinefelter syndrome is genetic condition affecting males and is often undiagnosed until adulthood. Klinefelter syndrome may be adversely affecting the testicular growth, resulting in smaller than normal testicles, which can lead to lower production of testosterone. The syndrome may also be caused by reduced muscle mass, reduced body and facial hair, and enlarged the breast tissue. Next, how does sclerotic dentine appear in reflected light? Sclerotic dentine, it will appear as black under reflected light. Sclerotic dentine appears dark in reflected light. देखो, sclerotic dark, ठीक है। ट्रांसमिटेड कब दिखेगी? ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर, ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर दिखती है और रिफ्लेक्टेड लाइट में डार्क दिखती है। इट अकर्स ड्यू टू केरीज, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन एट रीजन एंड इट इज एम्स टू प्रोटेक्ट द मैकेनिज्म। ठीक है, इसका एम होता है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो स्क्लेरोटिक डेंटिन है उसका। द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स आर ऑक्लूडेड एंड दस हेल्प्स टू मेंटेन द पल्प वाइटैलिटी। It appears transparent because it has same refractive index as dentinal tubules. ठीक है, जो स्क्लेरोटिक डेंटिन होती है वो ट्रांसपेरेंट इसलिए दिखती है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है एज दैट ऑफ द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट, पस्ट्यूल इज द फर्स्ट साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पस्ट्यूल इज द फर्स्ट साइन ऑफ पैम्फिगस वेजिटेंस हेलोपियू टाइप. Pemphigus vegetans Halopiu type. It is a mild pustular form of Pemphigus vegetans termed initially as Pyodermite vegetante, described by the person that was known as Halopiu, Hallopeau. ठीक है, तो pustule is the first sign of Pemphigus vegetans Halopiu type. Next, which of the following research methodology is best or highest level of evidence? Highest level of evidence जो होता है वो मेटा एनालिसिस होता है। मेटा एनालिसिस मतलब कि बहुत ज़्यादा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है उन सब का मिला के हमने एक एनालिसिस करा है। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस इन क्लिनिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। लेट्स अंडरस्टैंड द हायरार्की। फर्स्ट इज मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस होता है। ठीक है, हाईएस्ट रेलेवेंस होती है क्लिनिकल रेलेवेंस। मेटा एनालिसिस के बाद आता है सिस्टेमिक रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू सॉरी। ठीक है, इसके बाद आते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। ये हो गए ख़त्म। उसके बाद स्टडी शुरू हो जाती है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बाद स्टडी शुरू हो जाएगी। कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, केस सीरीज स्टडी, केस रिपोर्ट। ठीक, अब केस स्टडीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद आते हैं आइडिया, पर्सन अपने दिमाग से लगा रही चीज़। फिर एडिटोरियल, दूसरों ने डाटा पब्लिश किया उसको यूज़ करके हम ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, फिर ओपिनियन, फिर लास्ट में एनिमल रिसर्च। ओपिनियन के बाद आती है एनिमल रिसर्च। ठीक है, फिर लास्ट में आता है इन विट्रो टेक्निक्स, दैट इज़ टेस्ट ट्यूब के अंदर हम टेस्ट करके देख रहे हैं कि हमारा जो भी हमने सैंपल लिया है क्या वो चीज़ कर पा रहा है जो हम डिज़ायर करते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष इज़ फॉर व्हाट? मिशन इंद्रधनुष, इट इज़ फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, अ 40-year-old fair-skinned man presents with an ulcer on the upper lip with the rolled out margin obliterating the nasolabial angle. Histology shows the nest of tumor cells with intervening clefts, minimal cellular atypia and rare mitotic figures. What is the diagnosis for this disease? ठीक है,
तो इसके लिए बनता है नोड्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, 40 साल का बंदा है, फेयर स्किन है, प्रेजेंट विद एन अल्सर ऑन द ऊपर लिप, रोल्ड आउट मार्जिन है, ऑब्लिटरेट कर दे रहा है नेजोलेबियल एंगल को। हिस्टोलॉजी में उसका नेस्ट ऑफ ट्यूमर सेल्स दिखाई देते हैं विद इंटरवीनिंग क्लेफ्ट मिनिमर सेलुलर एटीपी और रेयर माइटोटिक फिगर्स भी दिखाई दे रहे हैं। सो इट इज़ नोडुलर बेसल सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट, फॉर्नियर्स मोलर्स आर सीन वेयर। फॉर्नियर्स मोलर्स जो होते हैं वो कंजेनाइटल सिफिलिस में देखे जाते हैं। फॉर्नियर्स मोलर्स दे आर सीन इन कंजेनाइटल सिफिलिस। देखो, फॉर्नियर्स मोलर्स जो होते हैं वो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर्स को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कस्प ऑफ कैरिबेलाई भी प्रेजेंट होता है। बाकी जो 4 ऑप्शन है उसमें लिखा टर्नर हाइपोप्लेजिया, उसमें दांत जो है ख़राब हो जाएगा, वो ढंग से नहीं निकल पाएगा, ढंग का मोलर नहीं निकल पाएगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी दांत में कोई ना कोई दिक्कत आएगी। एक्जेंथेमस फीवर आता है तो भी दांत के बेड में कोई ना कोई दिक्कत आएगी। बट ओनली इन कंजेनाइटल सिफिलिस हमारे जो दांत है दैट इज़ मोलर्स, दे आर नॉट अफेक्टेड। So Fournier's molars, that is normal molars, are seen in congenital syphilis. Among the options given, syndrome with atrophic degeneration of deep tissue muscles, fat and bones of unilateral face, it's what syndrome? ठीक है, atrophic degeneration हो रही है एक साइड ऑफ द फेस की, मतलब फैट मसल टिश्यू हर चीज़ की। तो among the following options we have Paré-Romberg syndrome। ठीक है, इसमें जो होती है atrophic degeneration होती है। It is not Paré-Romberg syndrome, it is Paré-Romberg syndrome, Romberg syndrome। ना ही स्क्लेरोडर्मा, ना ही Paré-Robin, ना ही Mechler syndrome, it is Paré-Romberg syndrome। A 10-year-old child has discolored maxillary left central incisor with brownish discoloration। 10 साल का बच्चा है, ठीक है, जो maxillary left central incisor है उसमें brownish discoloration है। He gives a history of trauma to the same region a few years back। What has affected the tooth? इसमें हो गया Turner's hypoplasia। Turner's hypoplasia। Turner's hypoplasia, it is a localized enamel hypoplasia of a permanent tooth। कॉज क्या हो सकता है? कोई ट्रॉमा या इन्फेक्शन ओवर द ओवरलाइंग प्राइमरी टूथ ड्यूरिंग इनामल फॉर्मेशन, वो कॉज हो सकता है। फीचर्स क्या होते हैं कि पिट बन जाते हैं, ग्रूव बन जाते हैं, रिड्यूस्ड इनामल थिकनेस हो जाती है। नेचर इज नॉन हेरिडेटरी और लोकलाइज्ड डिफेक्ट इसमें देखा जाता है। Oral hairy leukoplakia is caused by what? Oral hairy leukoplakia, OLP, it is caused by Epstein-Barr virus। Straight away question. Okay. Next, cervical facial involvement in infection mostly occurs in which of the following options? Cervical facial involvement पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए, एक्टिनोमाइकोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस। इनमें से एक्टिनोमाइकोसिस में सर्वाइकोफेशियल जो लिम्फ होता है, सर्वाइकोफेशियल इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली इफेक्ट हो जाता है। ऑलराइट, नाउ सर्वाइकल फेशियल एक्टिनोमाइकोसिस इज एन इन्वेसिव डिस्ट्रक्टेड infectious syndrome caused by gram-positive branching filamentous bacteria। gram-positive branching filamentous bacteria जो है वो cervicofacial actinomycosis cause करवाता है। Next, eosinophilic arc-shaped bodies are found in the lining of the residual cyst are known as what? Eosinophilic arc-shaped bodies found in the lining of residual cyst are known as Russian bodies। All right, Russian bodies. They are peculiar eosinophilic, linear, curved or straight polycyclic glassy structures occurring with variable frequency in epithelial lining of odontogenic cyst। ठीक है, most commonly seen in the radicular cyst। They need to be differentials from other bodies called as Russell bodies, which are thought to originate from plasma cells। Russian bodies are periodic acid shift positive। ठीक है, रशियन बॉडीज़ पास पॉजिटिव होती हैं और इनको डिफरेंशियल बॉडीज़ माना जाता है, जैसे कि जो कि ओरिजिनेट करती हैं प्लाज्मा सेल्स से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फॉर दिस लीजन? इट इज़ अ लीजन ऑफ herpes labialis in herpetic infections occurring on the lips, most oftenly on the vermilion border। This is the most common type of the recurrent herpes infection and is representing a classical cold sore infection। As with the other types of recurrent infection, it occurs after reactivation of latent herpes virus in the cells of trigeminal ganglia। ठीक है, herpes labialis is often presenting with initial prodromal symptoms such as tingling sensation, burning sensation or itching sensation। After 1 to 2 days, cutaneous eruption appears as a localized cluster of vesicles or erosions on an erythematous base। Next, identify the disorder। This disorder is Treacher-Collins syndrome। Okay, Treacher-Collins syndrome is an autosomal dominant condition जिसमें कि माइक्रोग्नाथिया होता है, अंडर डेवलप्ड फेशियल बोन्स होती हैं, क्लेफ्ट पैलेट होता है, डाउनवर्ड पैल्पेब्रल स्लोप होती है एंड अ नॉच इन द लोअर आईलिड्स कॉल्ड कोलम्बोमा होता है।
नॉच बन गई होती है लोअर आईलिड्स में, इट्स नोन एज कोलम्बोमा, ठीक है। माइक्रोग्नाथिया अंडर डेवलप्ड फेशियल बोन्स, क्लेफ्ट पैलेट, डाउनवर्ड palpebral slope, notch in the lower eyelids called as columboма. It is characterized by absent or small ears. इसमें absent या फिर बहुत ज़्यादा छोटे कान हो जाते हैं ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम में। Anti-DNA and anti-SM antibody is seen in which disease? Anti-DNA anti-SM antibody is seen in systemic lupus erythematosus. देखो एंटी-SM जो होती है वो स्मिथ न्यूक्लियर एंटीजन होते हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो काम कर रही होती है बेसिकली, ठीक है। ये टारगेट करती हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन्स इन द आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। और ऐसे ही ये डीएनए के अंदर भी तोड़ने का काम करती हैं। इन सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एसएलई, it is an autoimmune disease, we know that. It is characterized by multiple organ inflammatory damage and wide spectrum of autoantibodies formation. The autoantibodies, especially the anti-double stranded DNA and anti-Smith autoantibodies, that is anti-SM autoantibodies, they are highly specific to systemic lupus erythematosus, and they participate in the immune complex formation and the inflammatory damage on the multiple end organs such as kidney, skin, central nervous system. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम, ठीक है। तो पहले हम निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा का दूसरा नाम होता है गॉर्लिन-गॉस सिंड्रोम। इसमें ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट दिखाई देती हैं, मल्टीपल बेसल कार्सिनोमा दिखाई देता है, और देर इज़ अ कैल्सिफाइड फॉक्स सेरिब्राई, ठीक है। क्या चीज़ नहीं दिखाई देती? डेस्मोइड ट्यूमर नहीं दिखाई देते। डेस्मोइड ट्यूमर क्या होता है कि लोकली एग्रेसिव फाइब्रस ट्यूमर होता है, दैट इज़ नोन एज डेस्मोइड ट्यूमर। Gorlin-Goss syndrome or nevoid basal cell carcinoma is an autosomal dominant inherited disorder which is characterized by multiple odontogenic keratocysts, basal cell carcinoma, skeletal, dental, ophthalmic, neurological abnormalities, there is intracranial ectopic calcifications. For example, Fox cerebri की calcification and facial dysmorphism is also seen. It is caused due to mutation in PTCH gene. PTCH जीन की म्यूटेशन की वजह से गॉर्लिन-गॉस सिंड्रोम, निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम जो है वह अकर करता है। नेक्स्ट, 40-year-old मेल कंप्लेन्स ऑफ राइट नेजल स्वेलिंग सिंस लास्ट 3 years. The swelling has gradually increased in size and was initially asymptomatic but is now associated with dull pain and feeling of nasal obstruction. There is no medical history or trauma history. On examination, the swelling was soft and fluctuant. The X-ray of the adjoining teeth show that the teeth are vital. Alright. Now, what is the most likely cause for this disease? This is a nasolabial cyst. हमें एक इमेज भी दे रखी है जिसमें कि जो लिप के ऊपर वाला हिस्सा है वो सारा सोलन है। ये नोज़ आ गया, ये लिप आ गया। ये नोज़ के साइड और लिप के ऊपर वाला हिस्सा, दिस हिस्सा इज सोलन। Nasolabial cyst, it is a developmental non-odontogenic type of soft tissue cyst that is occurring in the nasal alar region of the midface. The cyst is derived from epithelial cells retained in the mesenchyme after the fusion of medial and the lateral nasal processes at approximately 4th week of intrauterine life. It is also known as KLESTADT cyst, Klestat cyst. इसको nasolabial cyst बोलते हैं। दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो इस क्वेश्चन में है, दैट इज नेजोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट, ठीक है। नेजोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट टू बी कंसिडर्ड in the differential diagnosis of the nasolabial cyst. The nasopalatine duct cyst is intraosseous in location, whereas the nasolabial cyst is exclusively found on soft tissues. Nasolabial जो होगा वो soft tissues के ऊपर exclusively मिलेगा, ठीक है। बट इफ इट इज नेजोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट तो वहाँ पे इंट्राऑसियस लीजन भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अनदर डिफरेंस इज दैट नेजोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट इट इज फाउंड इन एंटीरियर मिड पैलेटाइन रीजन। नेजोपैलेटाइन जो है वो एंटीरियर मिड पैलेटाइन रीजन में मिलता है, नाक की साइड में नहीं मिलता, ओके। तीसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है ग्लोबुलो-मैक्सिलरी cyst. Globulo-maxillary cyst appears between the maxillary lateral incisor and the adjacent canine. Globulo-maxillary cyst ये maxillary lateral incisor और adjacent canine के बीच में होता है। It exhibits as invert pear-shaped radiolucency. Inverted pear-shaped radiolucency की तरह दिखाई देता है on the radiograph. That is globulo-maxillary cyst. अब nasolabial cyst की बात कर लेते हैं। Nasolabial cyst it is a developmental non-odontogenic type of soft tissue cyst occurring in the nasal alar region of the midface. जो एला वाला रीजन जो होता है वहाँ पे अकर करता है। ये चीज़ याद रखनी है nasolabial cyst के लिए। Ameloblasts are derived from what? Ameloblasts they are derived from the ectodermal layer.
कहाँ से डिराइव होते हैं? फ्रॉम द एक्टोडर्मल लेयर. अमीलोब्लास्ट सिक्रीट द इनामल मैट्रिक्स एंड आर डिराइव फ्रॉम द ओरल एक्टोडर्म. एमीलोब्लास्ट का काम है इनामल बनाना, ओडोंटोब्लास्ट का काम है डेंटिन बनाना. ठीक है, और ओडोंटोब्लास्ट जो डेंटिन बनाते हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम द एक्टोमीजेनकाइमल लेयर. एक्टोमीजेनकाइमल लेयर. नेक्स्ट, oncocytes are routinely seen in salivary glands with increasing age. क्या दिखाई देता है? oncocytes दिखाई देते हैं. These oncocytes are similar to cells in which salivary gland tumor. ठीक है, तो एक salivary gland tumor होता है, that is oxyphilic adenoma. उसमें जो oncocytes बनते हैं वो normal oncocytes के जैसे similar होते हैं. Oncocytes are large cells with granular eosinophilic cytoplasm. The granular appearance is due to extensive mitochondria. Extensive mitochondria की वजह से granular appearance आती है. They are seen in many salivary gland neoplasms with most common being oncocytoma. Oncocytoma में दिखाई देते हैं. Oncocytoma oxyphilic adenoma में दिखाई देते हैं. Oncocytoma is characterized by proliferation of monotonous oncocytoma cells. The cells are arranged in rows and cords, forming an alveolar pattern. Alright, these cells show cellular atypia, nuclear hyperchromatism, and a few mitotic figures as well. Salivary gland lesion है, म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा, oncocytoma कार्सिनोमा, उसके अंदर भी हमारे पास oncocytes जो है वो दिखाई देते हैं. ठीक है, oncocytoma ट्यूमर मेटाप्लेजिया या फिर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, बेसल सेल एडिनोमा, उसके अंदर भी दिखाई देते हैं. वॉर्थिन ट्यूमर के अंदर भी दिखाई देंगे, और मल्टीमोडल नोडुलर ऑन्कोसिटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर भी दिखाई देंगे. अंडर माइक्रोस्कोप जो ऑन्कोसाइट दिखाई देता है, दैट इज अ पॉलीगोनल एपिथेलियल सेल्स विद अबंडेंट ग्रैनुलर इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म. ठीक है, बड़ा सेल होगा पॉलीगोनल, उसमें पिंक कलर का साइटोप्लाज्म होगा, और उसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होंगे विद वेल डिफाइंड बॉर्डर्स. ठीक है, एंड सेंट्रल टू एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड राउंड न्यूक्लियस होगा. सेंट्रल पे या फिर एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड राउंड न्यूक्लियस होगा. प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस हो सकता है, और सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन शीट्स, नेस्ट्स और कॉर्ड्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम के साइड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखो, फ्लैट नेजल ब्रिज इज अ साइन ऑफ डाउन सिंड्रोम, सीमियन क्रीज इज अ साइन ऑफ डाउन सिंड्रोम, प्रोट्रूडिंग टंग इज अ साइन ऑफ डाउन सिंड्रोम. ओके, चौथा जो साइन दिया हुआ जो कि नहीं है, दैट इज डाउनवर्ड स्लैंट ऑफ पैल्पेब्रल फिशर. पैल्पेब्रल फिशर में कोई हम इतना डिपेंडेंट साइन नहीं देखते. अब ये डाउनवर्ड स्लैंट ऑफ पैल्पेब्रल फिशर जो है, देखो पैल्पेब्रल स्लैंट क्या होती है कि अगर हम लाइन ड्रॉ करें इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ, तो वो लाइन जो है नीचे की तरफ आएगी. ठीक है, मतलब ये वाली आँख ऐसे करके रखी हुई है, ये नाक है, ऐसे करके आँख है. ठीक है, ऐसे आँख है बच्चे की. ये कौन से, ये डाउन सिंड्रोम में नहीं देखा जाता है. ठीक है, इट इज़ मोर कॉमनली सीन इन मार्फन सिंड्रोम. ठीक है, तो ये मार्फन सिंड्रोम की स्टेटमेंट इसमें घुसा दी है जो हमने रूल आउट करनी थी. ठीक है, डाउन सिंड्रोम की कुछ बातें कर लेते हैं, क्या क्या दिखता है इसमें. सबसे पहले दिखेगा मेंटल रिटार्डेशन. ऑलराइट, उसके बाद एपिकैंथल फोल्ड्स एंड फ्लैट फेशियल प्रोफाइल. एपिकैंथल फोल्ड ऊपर से नीचे को आएंगे, एपिकैंथल फोल्ड्स दिखेंगे, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होगी, लो सेट ऑफ ईयर्स होंगे, कान नीचे की तरफ होंगे और मतलब लो सेट होंगे, लो नीचे को, आंखों से नीचे कान दिख रहे होंगे. अबंडेंट नेक स्किन, मोटी नेक स्किन होगी, अबंडेंट नेक स्किन होगी, जीभ जो कि वो प्रोट्रूडिंग होगी, और कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स प्रेजेंट होंगे. सिंगल पाल्मर क्रीज मिलेगी, एक पाम में एक सिंगल क्रीज आ जाती है इनमें. ठीक है, देयर इज इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस, प्लस देयर इज अम्बिलिकल हर्निया, प्लस देयर इज हाइपोटोनिया ऑफ द मसल्स, प्लस देयर इज प्री डिस्पोजिशन टू ल्यूकीमिया. ठीक है, और गैप होगा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टोज, फर्स्ट टो गैप, सेकेंड टो. ऑलराइट, देयर विल बी अ गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टो इन द फीट. Next, early exfoliation of deciduous and permanent teeth occurs in which syndrome? Early exfoliation occurs in Papillon-Lefebvre syndrome. ठीक है, Papillon-Lefebvre syndrome. ये 4 सिंड्रोम दिए हुए थे, उसमें से ये जो है उसमें अर्ली एक्सफोलिएशन होती है. पहला है चाइदक हिगाशी सिंड्रोम, दूसरा है पैपिलोन-लेफेवरे सिंड्रोम, तीसरा हाइपोथायराइडिज्म, चौथा है हेमीफेसियल एट्रोफी. तो इनमें से जो हमने सही ऑप्शन लिया दैट इज पैपिलोन-लेफेवरे सिंड्रोम. ऑलराइट, कुछ सिंड्रोम होते हैं जिनके साथ अर्ली एक्सफोलिएशन यूजुअली रिलेटेड होती है, उनके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट इज हाइपोफॉस्फेटेजिया, फॉस्फेट दांत ढंग से बन नहीं पा रहा है तो दांत अर्ली एक्सफोलिएट कर जाते हैं. सेकेंड इज पैपिलोन-लेफेवरे सिंड्रोम. थर्ड इज सिंगल्टन-मार्टन सिंड्रोम, सिंगल्टन-मार्टन सिंड्रोम. फोर्थ इज हजडू-चीनी सिंड्रोम, हजडू-चीनी सिंड्रोम. फिफ्थ इज एहलर-डैनलोस सिंड्रोम. सिक्स्थ इज चेरुबिज्म. सेवन्थ इज एक्रोडाइनिया.
8th is hyperthyroidism. 8th is hyperthyroidism. 9th is Coffin-Lowry syndrome. Coffin-Lowry syndrome. 10th is histiocytosis X. Histiocytosis X. इन सभी में जो है अर्ली एक्सफोलिएशन ऑफ टीथ जो है वो हो जाती है. नेक्स्ट, a 30-year-old woman reports to you with a fractured femur. फ्रैक्चर्ड फीमर है. लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड एलिवेटेड लेवल्स ऑफ फॉस्फोरस एलिवेटेड है ब्लड के अंदर, दैट इज़ 5.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. लो लेवल्स ऑफ 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, दैट इज़ 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. विटामिन डी के लेवल्स लो हैं. ठीक है. अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स आर 21 यूनिट पर लीटर. ठीक है. शी इज़ ऑल्सो हैविंग एन FPD ऑन बोथ द आर्चेज. And history reveals early loss of deciduous dentation, which is the most likely diagnosis for the patient. इसमें जो फॉस्फेट के लेवल्स हैं, फॉस्फोरस के लेवल्स हैं, वो एलिवेटेड है ब्लड के अंदर. ठीक है. तो हड्डियों में ऑब्वियस सी बात है कम जा रहे हैं. देयर इज चांस ऑफ हाइपोफॉस्फेटेजिया. ऑलराइट. ठीक है. हाइपोफॉस्फेटेजिया, इट इज़ अ रेयर सिस्टमिक मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूटेशन इन TNS, that is tissue non-specific alkaline phosphatase gene. Alkaline phosphatase gene. Hallmarks are low level of alkaline phosphatase, elevated PLP levels, phosphorus levels in the blood. Severe infantile forms result in death due to respiratory insufficiency. ठीक है. The other features include hypomineralization of limbs leading to deformed limbs. इसके साथ साथ अगर deformed limbs है तो rickets हो सकते हैं. Hypocalciuria plus nephrocalcinosis is also seen in this hypophosphatasia patients. Okay. This is a hypophosphatasia, systemic metabolic disease है. Mutation TNS, ALF, ALP gene के साथ. Next, which of the following is involved in Kuttner's tumor? KUTTNERS tumor. Kuttner's tumor में submandibular gland tumor होता है. Kuttner tumor is a submandibular gland tumor. All right. Kuttner tumor is known as chronic sclerosing sialadenitis. What is this known as? Chronic sclerosing sialadenitis is characterized by progressive periduct and fibrosis. प्रोग्रेसिव डक्टल फाइब्रोसिस होती हैं, डायलेटेड डक्ट्स हो जाती हैं, डेंस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, लिम्फॉइड फॉलिकल फॉर्मेशन एंड देयर इज एसिनार एट्रॉफी. जो एसिनाई सेल्स होते हैं उनकी एट्रॉफी होती है. इट मिमिक्स अ मैलिग्नेंसी एंड प्रेजेंट्स एज अ पेनलेस हार्ड मास इन सबमैंडिबुलर ग्लैंड. 80% ऑफ द ट्यूमर्स इन द सबमैंडिबुलर ग्लैंड आर मैलिग्नेंट इन नेचर. लेकिन ये जो कटनर ट्यूमर है वो मिमिक ही कर रहा है, सिर्फ मिमिक करता है इस सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर को. ठीक है. इसमें बहुत ज़्यादा लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन दिखाई देगी और सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स दिखाई देंगी, जिनके अराउंड जो एसिनाई है उनकी नेक्रोसिस हो जाती है. ठीक है. उनकी एट्रॉफी हो जाती है. और एक चीज़ याद रखनी कि अगर एट्रॉफी बहुत ज़्यादा टाइम तक रह रही है, ठीक है, तो देन इट विल लीड टू नेक्रोसिस. एट्रॉफी एक हिसाब से रिवर्सिबल चेंज होता है कि बॉडी सारी चीज़ों का साइज स्मॉल हो गया है. ठीक है. और नेक्रोसिस इरिवर्सिबल चेंज होता है. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 35-year-old female has slow onset swelling in the parotid gland. Slow onset swelling in the parotid gland. FNAC जब हमने करवाई तो FNAC shows presence of myoepithelial cells. FNAC में myoepithelial cells present है in the glandular epithelium in a chondroid myxoid stroma. What is the diagnosis? It is pleomorphic adenoma. ठीक है. It is pleomorphic adenoma. Myoepithelial cells FNAC में present है. ग्लैंडुलर एपिथेलियम है इन कॉन्ड्रॉइड मिक्सॉइड स्ट्रोमा. इट इज़ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा. नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज द ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रोहन्स डिजीज़. क्रोहन्स डिजीज़ की ओरल मैनिफेस्टेशन में कौन कौन सा आता है? ठीक है. तो क्रोहन डिजीज़ में हमारे पास म्यूकोजिंजिवाइटिस इज देयर प्लस देयर इज एप्थस स्टोमेटाइटिस. Okay, mucogingivitis and aphthous stomatitis are two factors that are common in Crohn disease. Crohn disease is an autoimmune disorder with a frequent abdominal cramps, diarrhea and ulceration areas within the intestinal tract. Due to these, the patient they experience anemia and malnutrition due to the impaired absorption of vitamin B, vitamin D, folic acid and iron. B, D, folic acid और iron की माल absorption हो जाती है. These in turn can lead to glossitis, angular cheilitis, burning mouth syndrome, candidiasis, gingivitis. In rare condition or in addition rare condition में क्या होता है, there is pyostomatitis vagitans with yellow pus filled pustules that are present with snail track patterns. ठीक है. snail track patterns किस में दिखते हैं? क्रोहन डिजीज़ में.
स्नेल ट्रैक पैटर्न्स इन क्रोन्स डिजीज। दो चीज़ें कॉमन होती है, म्यूकोजिंजिवाइटिस एंड देयर इज एपिथस टोमेटाइटिस। कोई भी पेरी ओरल पिगमेंटेशन नहीं देखी जाती है इसमें, और कोई भी पायोजेनिक ग्रैनुलोमा नहीं देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 38-year-old patient reports to the hospital with severe pain in the left arm. He had fall in his backyard last night and noticed a swelling over his left forearm with tolerable pain. There is no evidence of fracture on X-ray. The swelling and the pain is worsening rapidly. Which of the following is most likely the diagnosis? There is a acute compartment syndrome. ठीक है, acute compartment syndrome. कोई एक्सरे के ऊपर कोई भी फटी हुई चीज़ नहीं है, एक्सरे पूरा सही है, लेकिन फिर भी उसकी पेन बहुत ज़्यादा वर्स से होती जा रही है, इन्फ्लेमेशन बहुत वर्स होती जा रही है। दैट इज एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इट इज़ अ सर्जिकल एमरजेंसी एसोसिएटेड विद द हाई एनर्जी इंजरीज लाइक फ्रैक्चर्स एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। ये भी हाई एनर्जी, मतलब फ्रैक्चर और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बिल्कुल हाई एनर्जी वाली जो होती है उसमें एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखा जाता है। देयर इज इंक्रीज प्रेशर विद इन द क्लोज्ड ऑस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट रिजल्टिंग इन इम्पेयर्ड सर्कुलेशन लीडिंग टू रैपिड एडिमा। जब रैपिड उस पर फोर्स लगी तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर लाइन या फिर जो भी फोर्स है उसने क्या किया कि वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, सर्कुलेशन का प्रेशर, जिससे कि रैपिड एडिमा होना शुरू हो गया वहीं पे। द मोस्ट कॉमन साइट्स आर लेग, फोर आर्म एंड थाई। द क्लासिक प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स 5 P's। इसमें 5 P's देखे जाते हैं। 5 P इंक्लूड्स पेन, पल्सलेसनेस, पल्स नहीं होगी उस जगह पे, पैरास्थीसिया विल बी देयर, टिंगलिंग सेंसेशन दैट इज paralysis will be there and pallor will be there. Pallor, paralysis, paresthesia, pulselessness and pain, ये आते हैं सारे acute compartment syndrome में। Next, to relieve the compartment syndrome, what procedure is done? जो हम सिंड्रोम में ये प्रोसीजर करते हैं दैट इज़ फेशियोटोमी, FASCIOTOMY, ओके, जिससे जो प्रेशर बिल्डअप है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, ऑलराइट। और फेशिया रिलीज़ करने की वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, तो प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाता और पेशेंट को पेन और जो सिम्टम्स हैं उनसे रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट 63-year-old पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ बैड ब्रेथ, पेन इन अपर राइट बैक टीथ रीजन इन सिंस 3 months, ठीक है। इसके साथ पेन जो है वो रेडिएट करती है नाक की तरफ और फोरहेड की तरफ, ऑलराइट। ना पेन पेशेंट जो है वो एटिनोलॉल पर है और मेटफॉर्मिन पर है 5 सालों से। एग्जामिनेशन पे रिवील होता है कि देर इज़ अ डिफ्यूज स्वेलिंग विद इल डिफाइंड बॉर्डर ऑन द राइट साइड ऑफ द फेस, द सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स वर पैल्पेबल ऑन बोथ द साइड्स, देर इज बोनी इरोजन ऑफ मैक्सिलरी आर्च अलॉन्ग विद द सूडो मेम्ब्रेनस स्लफ, ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोसिस? तो ये कंडीशन होगी, ऐसी नेक्रोटिक बोन होगी है पूरी, ऑलराइट। और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ऐसे रिबन लाइक हाइफे दिखा दे रहे, ओके, दीज रिबन लाइक हाइफे, alright. Now it is a condition that is known as mucormycosis. Mucormycosis is a fungus, Rhizopus aereus caused disease. Rhizopus aereus मतलब ARRHIZUS, इसकी वजह से होती है mucormycosis. Rhinocerebral mucormycosis presents with malaise, headache, swelling and low grade fever. The infection starts in the palatal mucosa or the nasal mucosa, and it spreads rapidly into the surrounding paranasal sinuses and results in necrotic eschar on the palate and nasal turbinates, alright. Histologically, there is presence of necrosis, numerous large thin-walled fungal hyphae which are non-septate, branched and at right angles and have a ribbon-like appearance, alright. ये जो इमेज है ये ढंग से देख लो, दिस इज़ फॉर म्यूकरमाइकोसिस। नेक्रोटिक बोन होगी, ये स्लफ बन गया है, ठीक है। दोनों साइड के लिम्फ नोड्स पैल्पेबल हैं, मैक्सिलरी आर्च पीछे से जो है वो पूरी इरोड होने शुरू हो गई है, पेन है नोज़ और फोरहेड रीजन में, और पेशेंट एटिनोलॉल और मेटफॉर्मिन पर भी है। देखो एटिनोलॉल और मेटफॉर्मिन क्यों दिया हुआ कि बंदा जो है वो डायबिटीज़ से ग्रसित भी है, प्लस उसके साथ उसको हाइपर टेंशन की दिक्कत भी है। Next, a classical picture of dog-bell experiment is representative of which theory? Dog and bell experiment, it is a representation of classical conditioning theory. कि जब भी वो बेल बजाएगा तो उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा कुत्ते के। Next, which growth theory says that the maxilla serve as a reference input while the mandible follows the output? The servo system theory है that says that maxilla serves as a reference input while the mandible follows the output of the maxilla. This orthodontic appliance that has coil in anterior and posterior region used for correction of posterior crossbite is what? तो ये आ जाता है हमारे पास क्वाड हेलिक्स, ठीक है। उसमें एक कॉइल पीछे होती है, एक कॉइल आगे की तरफ होती है एंटीरियर रीजन की तरफ। नेक्स्ट, स्पेस रीगेनिंग इज डन बाय व्हाट?
स्पेस रीगेनिंग हम कैसे करते हैं? बाय ओपनिंग द कॉइल स्प्रिंग. ऑलराइट, व्हेन वी ओपन द कॉइल स्प्रिंग it will lead to expansion of the maxilla, that will lead to space regaining. The open coil traction system or open retraction spring is developed by utilizing Naitai open coil springs for orthodontic space closure. It sustains a low load deflection rate with the optimum force magnitude, okay, and it's designed to be adjustable for a desired length and force level. It is fail safe for activation and deactivation. नाइटाई स्प्रिंग्स जो हैं वो हम सेफली यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेस को रीगेन भी कर सकते हैं और क्लोजर में भी हेल्प कर सकता है. सो आवर आंसर वाज स्पेस रीगेनिंग इज डन बाय ओपन कॉइल स्प्रिंग. नेक्स्ट, स्केलेटल कंपनसेशन इन क्लास 2 मालोक्लूजन इज व्हाट? स्केलेटल कंपोजिशन क्लास 2 मालोक्लूजन में हमारे पास होती है मैक्सिलरी इंसाइजर्स आर रेट्रोक्लाइंड. देखो हमारा जो मैंडिबल है वो पीछे को है, तो मैक्सिलरी इंसाइजर जो है वो रेट्रोक्लाइन हो जाते हैं और मैंडिबुलर इंसाइजर जो है वो प्रोक्लाइंड हो जाते हैं ताकि कंपनसेट हो सके. ऑलराइट, कॉम्पनसेशन होती है हमारी इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग द ओवरजेट एंड क्लास 2 अपीयरेंस आ जाती है. ठीक है, प्रोक्लिनेशन क्या करती है और रेट्रोक्लिनेशन क्या करती है? बेसिकली ओवरजेट जो है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है मैक्सिलरी मैंडिबुलर इंसाइजर्स के बीच में. नेक्स्ट, द पेशेंट कम्स टू यू इन द डेंटल क्लिनिक विद द मिडनाइट डायस्टीमा और उसकी एज जो है वो 9 से 11 साल है. मोड ऑफ ट्रीटमेंट विल बी व्हाट? आप सिर्फ पेशेंट को अश्योर करेंगे कि ये सिर्फ एक ट्रांजिएंट स्टेज है, अगली डकलिंग स्टेज, एंड इट विल करेक्ट ऑन इट्स ओन. ठीक है, अगली डकलिंग स्टेज जो है वो सेकंड ट्रांजिशनल स्टेज होती है एंड इट इज अ सेल्फ करेक्टिंग अनॉमली, वेयरएज मिडलाइन डायस्टीमा जो होता है दैट अकर्स बाय द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड ड्यू टू इरप्टिंग कैनाइन्स. ठीक है, एक बार इरप्टिंग कैनाइन जो है वो पूरी तरह से इरप्ट कर जाए उसके बाद वो सारी जो डेंटिशन है वो क्लोज कर जाती है. सो डायस्टीमा डिसअपियर्स. नेक्स्ट, द टेस्ट दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ द टंग थ्रस्टिंग हैबिट इज व्हाट? टंग थ्रस्टिंग हैबिट के लिए होल्ड द लोअर लिप एंड आस्क द पेशेंट टू ड्रिंक वाटर. अगर वाटर गश आउट करेगा देन दैट विल शो टंग थ्रस्टिंग. नेक्स्ट, टॉर्किंग इन ऑर्थोडोंटिक्स इज यूज फॉर व्हाट? टॉर्किंग इन ऑर्थोडोंटिक्स इज यूज फॉर बक्कल मूवमेंट ऑफ द रूट. ठीक है, torque is the third key of occlusion described by Andrews and is the inclination of the dental crown in the anterior posterior direction in the anterior teeth and transverse direction in the posterior teeth. Torque is the force that gives the operator control over the movement of roots of the teeth. ठीक है, रूट ऑफ द टीथ पे अगर मूवमेंट की कंट्रोल चाहिए तो वहाँ पे हम टॉर्क एज अ फैक्टर जो है उसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, द मिनी एस्थेटिक्स इन ऑर्थोडोंटिक्स दे कंप्राइज ऑफ व्हाट? मिनी एस्थेटिक्स दे कंप्राइज ऑफ tooth and gingival display. The mini aesthetics they basically refers to improve smile appearance with minimal treatment. Okay, तो उसमें tooth और gingival display जो है उसको adjust करके ही अपना aesthetic जो है उसको improve करने की कोशिश करते हैं. Next question is mini aesthetics in orthodontics refer to what? It refers to smile line. ठीक है, it refers to the smile line. Many aesthetics involve the study of smile framework involving the vertical tooth relationship, lip relationship, tooth lip relationship, smile type, transverse dimension of smile, smile arc, and midline of the smile. Okay, micro aesthetics involve the assessment of tooth proportions. जो mini है वो smile line के साथ डील कर रहा है, जो माइक्रो है दे इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ टूथ प्रोपोर्शंस. हाइट विड्थ रिलेशनशिप हो सकता है, कनेक्टर एंड एब्रेजर देखने, जिंजाइवल कॉन्टूर कैसा है, हाइट ऑफ जिंजाइवा कैसा है, टूथ शेड कैसा है, कलर ऑफ टूथ कैसा है, दे आर माइक्रो एस्थेटिक्स. ओके, नेक्स्ट, सर्जरी दैट इज डन टू एक्सेलरेट द ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज़ नोन एज कॉर्टिकोटोमी. ओके, टूथ मूवमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए कॉर्टिकोटोमी की जाती है. सर्जिकल कॉर्टिकोटोमी वॉज इंट्रोड्यूस्ड as a procedure to shorten the orthodontic treatment time. Corticotomy removes the cortical bone that strongly resists the orthodontic force in the jaw, keeping the marrow bone to maintain the blood circulation. Cortical bone remove कर देते हैं, marrow bone हम रहने देते हैं ताकि blood circulation चली रहे और movement जो है वो fast हो जाए. ठीक है, and there is continuity of the bone and tissues to reduce the risk of necrosis and facilitate tooth movement. It is basically based upon the regional accelerated phenomena. Regional acceleratory phenomena की basis पर ही हम corticotomy करते हैं. Next, a 5-year-old reports with recurrent episodes of severe gingivitis with intermediate periods of normal appearance in gingiva. Examination revealed isolated ulcers and loss of supporting bone around the teeth. Isolated ulcer थे
and loss of supporting bone around the teeth. History reveals frequent fever, frequent malaise and sore throat and cutaneous infections. A complete blood count is advised. What is your provisional diagnosis? There is cyclic agranulocytosis. Okay, cyclic agranulocytosis or cyclic periodic neutropenia or cyclic agranulocytosis angina. It is an unusual disorder characterized by malaise, fever, oral ulceration with scarring, along with gingivitis, periodontitis and disappearance of neutrophils from the blood and bone marrow at the approximately 21 days interval. 21 दिन के इंटरवल के अंदर ही न्यूट्रोफिल्स ब्लड और बोन मैरो से गायब हो जाते हैं. इट इज़ प्रेजेंट as recurrent oral ulcers and periodontitis. Incidence of bacterial infections is as low as compared to ग्रैनुलोसाइटोसिस. मतलब इसमें लो इंसिडेंस रहती है. अगर ए ग्रैनुलोसाइटोसिस को देखें तो उससे भी लो इंसिडेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है इसमें साइक्लिक पीरियोडिक न्यूट्रोपीनिया के अंदर. Next, 16-year-old boy reports to a diffuse transgradient palmar plantar hyperkeratosis since 4 years of age. There is a palmar plantar hyperkeratosis. 4 साल की उम्र से. There have been repeated episodes of swollen gums, early loss of deciduous and permanent teeth. Which of the following is most likely to cause the condition? ठीक है. This is Papillon-Lefevre syndrome. ठीक है. Papillon-Lefevre syndrome is an autosomal recessive disorder characterized by palmar plantar hyperkeratosis. क्या चीज़? Palmar plantar hyperkeratosis. And there is a juvenile aggressive periodontitis which leads to premature exfoliation of deciduous and premature exfoliation of the permanent teeth. So, osteoclast resorption rate after ostectomy is how much? Osteoclast resorption rate after ostectomy is 50 to 100 micrometer square. ठीक है. Osteoclast resorb करते हैं at about 100 micrometer square per square inch of the bone. इतना 100 माइक्रोमीटर पर स्क्वायर इंच जो होता है वो इनका चलता है पर डे. ठीक है. एक दिन में इतना कर सकते हैं, 100 माइक्रोमीटर तक रिजॉर्ब कर सकते हैं ऑस्टियोक्लास्ट. नेक्स्ट, द कॉजेटिव एजेंट फॉर लोकलाइज्ड जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस इज व्हाट? इट इज एक्टिनोबैक्टर एक्टिनोमाइसिटिस कॉमिटेंस. ठीक है, जिसको कि ए से भी लिखा जाता है बहुत बार. It is plays a causative role in localized juvenile periodontitis. इसका strong evidence है बिल्कुल. Next, supracrestal fibrotomy is done to incise which of the following? Supracrestal fibrotomy is done to incise the transseptal fibers. ट्रांससेप्टल फाइबर्स. ओके, ट्रांससेप्टल फाइबर्स कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम रोटेशन करवाते हैं किसी दांत की, तब हम ट्रांससेप्टल फाइबर्स को इंसाइज कर देते हैं. सुपराक्रेस्टल फाइब्रोटोमी इज अ सर्जिकल टेक्निक दैट डिवाइड्स द फ्री जिंजाइवा एंड द ट्रांससेप्टल फाइबर्स अराउंड द रोटेटेड टूथ दैट हैव बीन corrected orthodontically. Transseptal fibers extend interproximally over the alveolar crest and are embedded in the cementum of the adjacent teeth. These fibers may be considered as belonging to gingiva because they do not have any osseous attachment. Transseptal fibers are reconstructed even after destruction of alveolar bone that results from periodontal disease. Okay, so they are responsible for orthodontic relapse, orthodontic rotation and diastema closure. Next, what will be the recall interval of a periodontal patient who has generally good results maintained well for 1 year or more, but the patient is a smoker with some of the remaining periodontal pockets? Okay, तो हम recall करेंगे every 3 to 4 months. All right, not once a year, not in 6 months, not 1 to 2 months, every 3 to 4 months हम recall करेंगे. ठीक है, एक पूरी क्लासिफिकेशन है इसकी. दैट इज़ नोन एज मेरिन्स क्लासिफिकेशन, MERIN क्लासिफिकेशन. देखो फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं हम? इफ़ द फर्स्ट ईयर पेशेंट दैट इज़ रूटीन थेरेपी एंड अनइवेंटफुल हीलिंग इज़ देयर, तो रिकॉल इंटरवल होता है 3 months का. अनइवेंटफुल हीलिंग है और रूटीन थेरेपी है पेशेंट की. ठीक है, फर्स्ट पहला साल है पेशेंट का, डिफिकल्ट केस था, कॉम्प्लिकेटेड प्रोस्थेसिस, फर्केशन इन्वॉल्वमेंट थी, पुअर क्राउन टू टूथ रेशो था और क्वेश्चनेबल पेशेंट कोऑपरेशन है. मतलब हमें क्वेश्चनेबल पेशेंट कोऑपरेशन है यहाँ पे. सो वी विल रिकॉल हिम और हर आफ्टर 1 to 2 months. ये आती है पहले साल की बात, फर्स्ट ईयर की बात. अब आती है बात क्लास ए के बारे में. क्लास ए, इसमें एक्सीलेंट रिजल्ट्स मेंटेन करे पेशेंट ने 1 साल के लिए. पेशेंट के पास गुड ओरल हाइजीन है, मिनिमम कैलकुलस है, नो ऑक्लूजल प्रॉब्लम्स आर देयर, नो कॉम्प्लिकेटेड प्रोस्थेसिस इज देयर, नो रिमेनिंग पॉकेट्स इज देयर, नो टीथ with less than 50% of alveolar bone remaining is there. मतलब 50% तक alveolar bone हर दांत के पास है और दिक्कतें बाकी जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं और बाकी पेशेंट खुद को मेंटेन भी अच्छे से कर रहा है. तो हम कितने महीनों में रिकॉल करेंगे? वी विल रिकॉल आफ्टर 6 months. ओके, सेकंड इज़ क्लास बी.
ऑलराइट। क्लास बी में आता है हमारे पास, जनरली गुड रिजल्ट्स आर मेंटेन बाय द पेशेंट फॉर 1 ईयर और मोर, बट पेशेंट डिस्प्लेड सम ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। 1 साल से ज़्यादा तक पेशेंट ने गुड रिजल्ट्स मेंटेन किए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम इनमें, ये जो हमें कैरेक्टर दिए हुए हैं उनमें से एक पहला है इनकन्सिस्टेंट या फिर पुअर ओरल हाइजीन। कैलकुलस फॉर्मेशन हो रही है, सिस्टमिक डिजीज़ है जो कि पेरियोडोंटल ब्रेकडाउन करवा रही है, प्लस कोई ना कोई रिमेनिंग पेरियोडोंटल पॉकेट है, कोई ऑक्लूजल प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोस्थेसिस दी गई है, कोई ऑनगोइंग ऑर्थोडोंटिक थेरेपी चल रही है, कोई रिकरेंट डेंटल केरीज है, कोई भी टीथ है जिसमें कि हमारे पास 50% से ज़्यादा एल्व्यूलर बोन का लॉस हो चुका है, प्लस स्मोकिंग अगर है, प्लस कोई फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक टेस्ट है, प्लस 20% ऑफ पॉकेट जो है वो ब्लीड कर रही हैं आफ्टर प्रोबिंग, तो वी विल कॉल हिम और हर आफ्टर 3 to 4 months। ठीक है, हम कितने नेगेटिव फैक्टर्स हैं, कितनी उसकी सीवियरिटी है, उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड द नंबर, बट दिस नंबर इज़ 3 to 4 months ऑन एन एवरेज फॉर अ क्लास बी पेशेंट। ठीक है, अब आती है बात क्लास सी पेशेंट की। क्लास सी पेशेंट की आती है, देखो सबसे पहले आया था हमारे पास फर्स्ट ईयर, ठीक है, फिर आया क्लास ए, फिर आया क्लास बी और फिर आया क्लास सी। क्लास सी पेशेंट में जनरली पुअर रिजल्ट होते हैं आफ्टर पेरियोडोंटल थेरेपी। पेरियोडोंटल थेरेपी होगी फिर भी पुअर रिजल्ट है। ठीक है, क्लास बी में गुड रिजल्ट मेंटेन कर रहा था, क्लास सी में पुअर रिजल्ट है और सीवियर नेगेटिव फैक्टर जो है वो उसके साथ एडेड है। इनकंसिस्टेंट पुअर ओरल हाइजीन, हैवी कैलकुलस फॉर्मेशन, सिस्टमिक डिजीज दैट प्री डिस्पोजेज इनटू पेरियोडोंटल ब्रेकडाउन, मैनी पेरियोडोंटल पॉकेट्स, ऑक्लूजल प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोस्थेसिस है, रिकरेंट डेंटल केरीज है, पेरियोडोंटल सर्जरीज इंडिकेटेड बट नॉट परफॉर्म फॉर मेडिकल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल रीजंस। सर्जरी इंडिकेटेड है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल रीज़न है कि कोई और बीमारी भी है, साइकोलॉजिकल रीज़न है कि बंदा बैठ नहीं सकता, मानता ही नहीं है, तीसरी चीज़ था फाइनेंशियल रीज़न, बंदे के पास पैसे नहीं है करवाने के, चौथी चीज़ आती है कि जो टीथ है उसमें से बहुत सारे दांतों में 50% से ज़्यादा एल्वियोलर बोन लॉस हो चुका है, कंडीशन टू एडवांस्ड है और पेरियोडोंटल सर्जरी से भी ढंग से ठीक नहीं हो पाएगी, ऐसा हमें पता है, ऐसा हम इन्फर कर रहे हैं। प्लस स्मोकिंग भी करता है पेशेंट, प्लस पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी है, प्लस मोर देन 20% दांत जो है उनमें ब्लीडिंग और प्रोबिंग हो जाती है। इनके साथ साथ पेशेंट जो है उतनी कोऑपरेशन शो नहीं करता, उतनी डेडिकेशन शो नहीं करता खुद को ठीक करने के लिए। तो हम कितने महीनों में रिकॉल करेंगे? देखो इसमें भी हम डिसाइड करेंगे अपॉन द नंबर ऑफ सीवियरिटी एंड द नेगेटिव फैक्टर्स, कंसिडर रीट्रीटिंग सम ऑफ द एरियाज और एक्सट्रैक्टिंग सम ऑफ द सीवियरली इंडिकेटेड टीथ। ठीक है, ताकि थोड़ी बहुत जो पेन वगैरह और डिस्कम्फर्ट वगैरह की दिक्कत है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है, वो ठीक हो सके, और 3 से 4 मंथ्स में ही इसमें हम रिकॉल करते हैं क्लास सी में भी। नेक्स्ट, द पेरियोडोंटल एंड पल्पल एब्सेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय व्हाट। देखो अगर पेरियोडोंटल एब्सेस है तो वहाँ पे जो टूथ होगा दैट विल बी वाइटल। ओके, पल्पल एब्सेस है तो पल्पल एब्सेस बन गई तो मतलब टूथ तो पहले ने क्रॉस, जो पल्प है वो पहले ने क्रॉस कर चुका है, सो पल्प विल नॉट बी वाइटल, द टूथ विल नॉट बी वाइटल इन पल्पल एब्सेस, बट इन पेरियोडोंटल एब्सेस द टूथ विल बी वाइटल। नेक्स्ट, व्हाट इज द AHI स्कोर फॉर मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? AHI स्कोर फॉर मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, AHI स्कोर जो होता है 15 से 30 आता है फॉर मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। When we call it as apnea, जब cessation of air flow for more than 10 seconds होती है। हाइपोएपनिया में 50% रिडक्शन इन द एयर फ्लो फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स, जब नींद में, स्लीप में। ओके, नाउ एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ एपनियाज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइपोएपनियाज पर नंबर ऑफ स्लीप, कि कितने 1 घंटे के लिए सो रहे तो उसमें से कितनी बार उसको उठना पड़ रहा है, दैट इज़ एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स। ठीक है, सीवीआईटी क्या होती है कि अगर 1 घंटे के अंदर सो रहा है तो एपनिया हाइपोएपनिया एपिसोड जो है उसका 5 एपिसोड आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 10 सेकंड के लिए जो सांस उसकी सेसेशन ऑफ एयर फ्लो हो रहा है या फिर कम उसका एयर फ्लो जा रहा है 10 सेकंड के लिए, वो लगभग 5 आ रहे हैं। ठीक है, माइल्ड में क्या होता है 5 से 15 तक जाती है ये चीज़, मॉडरेट में 15 से 30 तक होती है, और अगर 1 घंटे में सो रहा है तो उसमें 30 से ज़्यादा बार वो उठ जा रहा है, 30 से ज़्यादा बार उसको एपनिया हाइपोएपनिया का जो एपिसोड है वो आ रहा है, तो वहाँ पे दैट इज़ सीवियर एपनिया हाइपोएपनिया। ठीक है, स्लीप अपनिया सिंड्रोम SAS, इसमें AHI जो होता है दैट इज़ 5 विद सिम्टम्स। ठीक है, सांस रुक जाती है, नींद टूट जाती है। ठीक है, इसके साथ आता है चीनी स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन। ठीक है, दैट इज CHEYNE, स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन। 3 कंसिक्यूटिव साइकिल्स आएंगी, क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो चेंजेस इन ब्रीदिंग एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग 10 कंसिक्यूटिव मिनट्स और एन AHI ग्रेटर देन 5। काइंड स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन को इजी भाषा में अगर बोलें तो ग्रेजुअल इंक्रीज हो जाता है इन द डेप्थ एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, एक जगह हाइपर एपनिया हो जाएगा, फॉलोड बाय ग्रेजुअल डिक्रीज, मतलब
ग्रेजुअल इंक्रीज हो रही है साइकिल, मतलब सांस ज़्यादा बढ़ रही है, फिर डिक्रीज हो जा रही है सांस, फिर एक पीरियड आ रहा है जहाँ पे सांस आ ही नहीं रही है, देयर इज एपनिया, ठीक है, फिर से ये साइकिल रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है मैकेनिज्म में कि डिलेड का फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ब्लड और ब्रेन के बीच में, उसका फीडबैक बहुत ज़्यादा डिले कर जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा सांस लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर बोलेगा कि नहीं अब सांस जो है वो थोड़ी धीरे लो, अब धीरे सांस ले रहा है, अब ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में इतना मतलब वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तब भी दिमाग को लेट पता चल रहा है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर को लेट पता चल रहा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड घट रही है तब भी रेस्पिरेटरी सेंटर को लेट पता चल रहा है, तो दैट विल लीड टू अ काइंड स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज मोस्ट इम्प्लीकेटेड फॉर जिंजाइवल एनलार्जमेंट? तो इसमें आंसर है डायलेटिन सोडियम। ओके, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे को जिंजाइवल एनलार्जमेंट करवाते हैं, इनमें एंटी कन्वल्सेंट्स में आते हैं जो एपिलेप्सी में हम देंगे, फेनेटोइन आता है, डाइफिनाइल हाइड्रेंटोनाइट और फिनोबार्बिटल वैल्प्रोइक एसिड, ये सारे जिंजाइवल एनलार्जमेंट करवाते हैं। इसके साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में डिल्टियाज़म, वेरापामिल, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, ये सारे जिंजाइवल एनलार्जमेंट करवाते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स की बात आती है, इम्यूनोसप्रेसेंट में जो भी हम ट्रांसप्लांट के पेशेंट में अगर दे रहे हैं या फिर HIV का पेशेंट तब दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर साइक्लोस्पोरिन अगर यूज़ की जा रही है, साइक्लोस्पोरिन, तो वो भी जिंजाइवल एनलार्जमेंट करवाता है। नेक्स्ट, ओरोग्रैनुलोसाइट्स इन सलाइवा आर नोन एज व्हाट? जो PMNs होते हैं वो ओरोग्रैनुलोसाइट्स इन सलाइवा होते हैं। लिविंग PMNs इन द सलाइवा समटाइम्स रेफर टू एज ओरोग्रैनुलोसाइट्स। द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ और इनटू द ओरल कैविटी इज टर्म्ड एज ऑर्गेनोलोसिटिक माइग्रेशन रेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनोलोसिटिक माइग्रेशन रेट, जो PMNs सलाइवा के अंदर जाते हैं। स्कोगर्ड, एक तो नाम अजीब है इनके, SKOUGOARD इन 1994, ठीक है, स्कोगर्ड ने 1994 में प्रपोज किया था दैट रेट ऑफ माइग्रेशन इज को रिलेटेड टू सीवियरिटी ऑफ जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन। जितनी ज़्यादा जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन होगी उतने ही लिविंग PMNs जिंजाइवा के ऊपर माइग्रेट कर जाते हैं। हैंस अ रिलायबल इंडेक्स फॉर असेसिंग जिंजिवाइटिस। तो हम अगर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड लेते हैं तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा PMNs हमें मिल रहे हैं तो दैट शोज़ कि हमारी जिंजिवाइटिस की स्टेज कितनी है, ठीक है। Next, the necrotizing ulcerative gingivitis is best described as a punched out crater-like lesion. कैसा लीजन होता है? Punched out crater-like lesion. Characteristic lesions of necrotizing ulcerative gingivitis are punched out crater-like depressions at the crest of interdental papillae and subsequently extend to the marginal gingiva and rarely to the attached gingiva and oral mucosa. ठीक है, ये जो क्रेटर लाइक डिप्रेशन है वो रेयरली अटैच जिंजाइवा पे जाते हैं और रेयरली ओरल म्यूकोसा पे जाते हैं, लेकिन ये एक्सटेंड करते हैं ऑन टू द मार्जिनल जिंजाइवा। ओके, द सर्फेस ऑफ द जिंजाइवल क्रेटर इज कवर्ड बाय ग्रे सूडोमेम्ब्रेनस स्लफ दैट इज डीमार्केटेड फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ जिंजाइवल म्यूकोसा बाय प्रोनाउंस्ड लीनियर एरिथमा। ठीक है, नॉर्मल म्यूकोसा में प्रोनाउंस्ड लीनियर एरिथमा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो सूडो मेम्ब्रेनस स्लफ होती है उसको हम अगर रिमूव करें तो प्रोनाउंस्ड लीनियर एरिथमा जो हमारा नग है नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस है उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट, सीमेंटम इज कंप्राइज मोस्टली ऑफ विच टाइप ऑफ कोलेजन? सीमेंटम इज कंप्राइज्ड ऑफ टाइप 1 कोलेजन। ओके, सीमेंटम इज कंप्राइज ऑफ टाइप 1 कोलेजन। सीमेंटम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक पोर्शन एंड देन इनऑर्गेनिक पोर्शन। ऑर्गेनिक पोर्शन ज़्यादा होता है, दैट इज़ 50 to 55%, और इनऑर्गेनिक पोर्शन कंपैरेटिवली लो होता है, दैट इज़ 40 to 45%। ठीक है, या फिर 50% तक भी चला जाता है। इनऑर्गेनिक पोर्शन में क्या आता है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट आ सकता है, कैल्शियम एपेटाइट आ सकता है, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, दीज एपेटाइट क्रिस्टल्स आर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पोर्शन में क्या आता है? ऑर्गेनिक पोर्शन में आपके सेल्स आते हैं प्लस द ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास आते हैं फाइबर्स, ऑलराइट, दैट कैन बी एक्सट्रिंसिक फाइबर्स और इंट्रिंसिक फाइबर्स। एक्सट्रिंसिक फाइबर्स में आते हैं शार्पीज फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट टाइप 1 कोलेजन 95%, शार्पीज फाइबर्स विद फाइब्रोब्लास्ट टाइप 1 कोलेजन। ठीक है, इंट्रिंसिक फाइबर्स जो मैट्रिक्स फाइबर्स होते हैं वो सीमेंटोब्लास्ट टाइप 3 कोलेजन बनाते हैं जो कि सिर्फ 5% होता है। ठीक है, सीमेंटोब्लास्ट टाइप 3 कोलेजन दैट इज़ 5% ओनली। टाइप 1 इज़ 95% एंड टाइप 3 इज़ ओनली 5%।
नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ केराटिनाइज जिंजाइवा इंक्लूड्स व्हाट। देखो केराटिनाइज जिंजाइवा की विड्थ होती है मार्जिनल जिंजाइवा प्लस अटैच जिंजाइवा। ओके, मार्जिनल जिंजाइवा प्लस अटैच जिंजाइवा इट इज़ नोन एज केराटिनाइज्ड जिंजाइवा। ओके, अब विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा अगर निकालनी है आपको तो केराटिनाइज जिंजाइवा माइनस मार्जिनल जिंजाइवा आ जाएगा अटैच जिंजाइवा। ओके, नेक्स्ट विच स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ टोन ऑफ द कार्डियक वाल्व्स। टोन ऑफ कार्डियक वाल्व्स आर मेंटेन्ड बाय कॉर्डा टेंडिने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर डेवलपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से 4 ऑप्शन दिए, उसमें से ऑडिटरी ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। ऑडिटरी ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्फीनो-ऑसिपिटल जंक्शन सूचर ऑसिफाइड एट द एज ऑफ व्हाट एज। मतलब स्फीनो-ऑसिपिटल सूचर कब ऑसिफाई करता है? आंसर इज 14 से 18 साल में स्फीनो-ऑसिपिटल सूचर जो है वो ऑसिफाई करता है। Ford, in a study on human tricycle, reported that the closure of spheno-occipital sutures or synchondrosis takes place somewhere between 17 to 25 years of age. Okay. Next, the greater auricular nerve supplies what? The greater auricular nerve supplies the skin over the parotid. It supplies the external ear. Along with this, the greater auricular nerve supplies the skin behind the auricle. Okay. जिसको कि हम पोस्टीरियर ऑरिकुलर रीजन भी बोलते हैं। द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व इट इज अ सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स दैट प्रोवाइड्स सेंसरी इनर्वेशन टू स्किन ओवरलाइंग द पैरोटिड ग्लैंड, एक्सटर्नल ईयर एंड द पोस्टीरियर ऑरिकुलर रीजन। नेक्स्ट, द स्किन ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल इज सप्लाइड बाय व्हाट? इट इज सप्लाइड बाय ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। Okay. Next, the patient who recently had thyroidectomy reports to the complaint of dysphagia, dysphonia, hoarseness and voice. What nerve is most commonly damaged in this surgery? इसमें right recurrent laryngeal nerve जो है वो थायरॉयडेक्टोमी प्रोसीजर में डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और डिस्फेजिया डिस्फोनिया वाले सिम्टम्स जो है वो आते हैं। द एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व दैट इज EB is at risk during the thyroid surgery because of its close anatomical relationship with the superior thyroid vessels and the superior thyroid pole region. The right recurrent laryngeal nerve is more susceptible. Right recurrent laryngeal nerve is more susceptible to damage during thyroid surgery because it is closer to the bifurcation of the right inferior thyroid artery. Variably, it passes in front and behind and between the branches of these arteries. ठीक है। नाउ इंजरी टू एनी यूनिलेटरल recurrent laryngeal nerve has potential to cause unilateral vocal cord paralysis, ठीक है, जिसकी वजह से बोल नहीं पाएगा। Patients will typically complain of new onset of hoarseness in voice, that is changes in the vocal pitch and noisy breathing. In contrast, the bilateral palsies are present with stutter on inspiration due to glottis की जो glottis है वो पतला हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से एक स्टिडर जैसी आवाज़ जो है वो निकलती है, ठीक है, और बायलेटरल पैल्सीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, लोअर एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ ईसोफेगस इज सप्लाइड बाय व्हाट? इट इज सप्लाइड बाय T5 टू T12। ईसोफेगस का जो लोअर पोर्शन है जो एब्डोमेन की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो T5 टू T12 स्पाइनल नर्व से सप्लाई होता है। ऑलराइट, द ईसोफेगस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सर्वाइकल, thoracic and abdominal. Cervical part which travels through the neck, thoracic part which is located in the thorax, most specifically बोले तो in the mediastinum. Abdominal part which travels past the diaphragm into the abdomen reaching the stomach. The parasympathetic component of the cervical part is supplied by the recurrent laryngeal nerve, that is 10th cranial nerve की branch, ठीक है। सर्वाइकल पोर्शन में जो हमारी क्रेनियल नर्व की सप्लाई है दैट इज रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, अ ब्रांच ऑफ वेगस, दैट इज क्रेनियल नर्व 10, while the sympathetic fibers arise from cervical sympathetic trunk. सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलेंगे सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक से। नेक्स्ट बात आती है थोरेसिक पार्ट के बारे में। थोरेसिक पार्ट ऑफ ईसोफेगस, इट इज इनर्वेटेड बाय ईसोफेजियल प्लेक्सस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नेटवर्क सराउंडिंग द ईसोफेगस. Alright, the parasympathetic component of this plexus originate from vagus nerve, while the sympathetic fibers also stem from the sympathetic trunk running along the neck. Sympathetic fibers sympathetic trunk से लेते हैं, parasympathetic fiber जो है वो plexus जो है वो vagus nerve से originate करता है। Next, in contrast to the two previous pathways, मतलब 2 previous हमने बात कर लिया, अब थर्ड पाथ आता है हमारा नीचे वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला हिस्सा, that is abdominal part of the esophagus, ठीक है। एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस उसकी स्लाइटली डिफरेंट नर्व सप्लाई होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो इनर्वेशन होती है दैट अराइजेस फ्रॉम द ईसोफेजियल नर्वस प्लेक्सस, वाइल इट्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इसका इनर्वेशन होती है वो 5th to 12th
thoracic spinal nerves जो है उसे वो इनर्वेट करती हैं इसको. नेक्स्ट, एनी हेमाटोमा और ट्यूमर इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम रिजल्ट्स इन द कंप्रेशन ऑफ व्हाट, कि पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में अगर कोई हेमाटोमा या फिर ट्यूमर बनता है दैट लीड्स टू कंप्रेशन ऑफ ईसोफेगस. ओके, large anterior mediastinal masses may cause dyspnea in the patients when they are lying or when they are in the supine position. Lesions in the middle of the mediastinum compresses the blood vessels or airways, causing superior vena cava syndrome or airway obstruction. क्या करवाता है? superior vena cava syndrome करवाता है. Lesion in the posterior mediastinum may encroach the esophagus, causing dysphagia and odynophagia. ठीक है, डिस्फेजिया का दूसरा नाम ओडाइनोफेजिया होता है. द मासेस लोकेटेड इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम आर वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस आर प्रेजेंट इन वाइड रेंज ऑफ डिजीज. ओके, पहला आता है न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स जैसे कि श्वानोमा, गैंगली न्यूरोमा और न्यूरोब्लास्टोमा. इसमें 80% केसेस होते हैं जहाँ पे पोस्टीरियर मीडियास्टिनल ट्यूमर जो है वो एयरवे और जो हमारी ईसोफेगस है उसको कंप्रेस कर रहा होता है. नेक्स्ट बात आती है मीडियास्टिनल हेमाटोमा. इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय थोरैसिक ट्रॉमा और रप्चर ऑफ ऑर्टिक एन्यूरिज्म. ठीक है, एन्यूरिज्म क्या होता है कि हमारी बैलूनिंग ऑफ द आर्टरी हो गई है, उसकी जब रप्चर हो जाता है तो उससे मीडियास्टिनल हेमाटोमा हो जाता है. स्पॉन्टेनियस नॉन ट्रॉमेटिक मीडियास्टिनल हेमाटोमास आर रेयर बट पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस दैट कैन अकर इन पेशेंट्स टेकिंग एंटीकोएगुलेंट्स. द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम कंटेन्स सेवरल स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ पैथोलॉजिक कंडीशंस इन द डिसेंडिंग thoracic aorta, esophagus, azygous and hemiazygous veins, thoracic duct, lymph nodes, adipose tissue and nerves. ऑल आर लोकेटेड इन दिस एनाटॉमिकल रीजन. और ये जितने भी डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा है, ईसोफेगस है, एजाइगस हेमी एजाइगस वेन्स हैं, थोरैसिक डक्ट है, लिम्फ नोड्स है, एडिपोज टिश्यूज है, ये कंप्रेस हो सकते हैं इसकी वजह से. नेक्स्ट, द नेजल अपर्चर ऑल्सो नोन एज पायरिफॉर्म अपर्चर इज फॉर्म्ड बाय व्हाट. पायरिफॉर्म अपर्चर इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिलरी बोन प्लस द नेजल बोन. ठीक है, इसमें जाइगोमेटिक बोन कोई भी काम नहीं करती है. मैक्सिलरी आएगी और जो हमारी नेजल बोन होती है वो दो मिलके जो हमारा पायरिफॉर्म या नेजल अपर्चर है वो बनाती हैं. इट इज़ अ पेयर शेप्ड बोनी इनलेट ऑफ द नोज फॉर्म्ड बाय नेजल एंड मैक्सिलरी बोन्स. नेक्स्ट, द inferior parathyroid gland is a derivative of which pharyngeal pouch? Inferior parathyroid gland, derivative of third pharyngeal pouch. Okay. Next, a patient reports with left eye blindness. He probably has a lesion located at which nerve? देखो, आई ब्लाइंडनेस देखना आपने. लेफ्ट है तो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व में कोई दिक्कत आएगी, राइट है तो राइट ऑप्टिक नर्व में कोई दिक्कत आएगी. अगर दोनों उड़ गई हैं तब हमारे पास जो है पूरा विजुअल पाथवे में कहीं ना कोई दिक्कत आई होती है. द विजुअल पाथवे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैरी विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन. Lesions in the pathway cause variety of visual field defects. Lesion involving a whole optic nerve, तो वहाँ पे होगी complete blindness on the affected side. This means that damage of the left side optic nerve causes complete loss of vision in the left eye. दोनों विजुअल कॉर्टेक्स जो हमारे लेफ्ट और राइट होते हैं वहाँ से हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस निकलता है. ठीक है, यहाँ से एक पूरा नर्व फाइबर निकलेगा, यहाँ लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस बनेगा और यहाँ लास्ट में आके ऑप्टिक कियाज्मा हो जाता है. ओके, लेफ्ट एंड राइट का मिलके ऑप्टिक कियाज्मा हो जाता है. फिर ऑप्टिक नर्व अराइज होती है, दैट सप्लाइज टू आई. ऑप्टिक नर्व अराइज करेगी, दैट सप्लाइज टू आई. अगर ऑप्टिक कियाज्मा पे कोई दिक्कत आई है तो वहाँ पे दोनों की विजन चले जाएगी, दोनों साइड की आँख की विजन चले जाएगी. अगर लेफ्ट हेमिस्फेयर में कोई दिक्कत है तब भी ऑप्टिक कियाज्मा में दिक्कत होगी, तो राइट लेफ्ट का पता नहीं लग पाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ कियाज्मा की वजह से दोनों ही सप्लाई हो रही हैं, दोनों ही अपने सिग्नल जो है ब्रेन की तरफ भेज रही हैं. ठीक है, तो कियाज्मा पे कोई दिक्कत है देन बोथ विल बी गॉन. अगर ऑप्टिक नर्व की दिक्कत है तो यूनिलेटरल विल बी गॉन. नेक्स्ट, हेयर लिप और मिड लाइन क्लेफ्टिंग ऑफ द लिप इज कॉज ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ व्हाट. मिड लाइन जो क्लेफ्टिंग होती है दैट इज कॉज ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मीडियन नेजल प्रोसेसेस. Okay, the midline facial clefts are rare and challenging deformities caused by failure of fusion of the medial nasal prominences or medial nasal processes. The failure of fusion between the medial and the lateral nasal processes and the maxillary prominence during the 6th week of development leads to cleft lip. कौन सा week of development? 6th week of development. Midline cleft of the upper lip could develop because of split within the medial nasal processes. Midline cleft of upper lip could develop because of the split within the median nasal processes. A notch in the alveolar process will accompany a cleft lip even if there is no cleft of the secondary palate. Notch in the alveolar process will accompany a cleft lip even if there is no cleft in the palate. Okay.
Next, during thyroidectomy, a flap is reflected to isolate the thyroid, which overlying muscles is retracted with the flap for exposing the superior pole of thyroid gland. Superior pole of thyroid gland को देखने के लिए या फिर विजुलाइज करने के लिए जो मसल हम रिट्रैक्ट करेंगे, that will be sternothyroid. Which muscle? Sternothyroid. Partial cutting of the sternothyroid muscle at the laryngeal head at the insertion point of sternothyroid muscle along the thyroid cartilage is reportedly a safe surgical technique for exposing the superior pole of thyroid gland and to facilitate the isolation and ligation of the vascular pedicles of the superior pole. The most common procedure for conventional open thyroidectomy is the midline approach, in which the strap muscles are divided along the linea alba and separated from the thyroid gland. Next question is, during surgical exposure of thyroid, which muscle is first incised and retracted using the retractor as shown below? तो इमेज दे रखी है, तो हमें फर्स्ट इनसाइड मसल जब अगर हम थायराइड की सर्जरी कर रहे हैं तो दैट विल ऑलवेज बी प्लैटिज्मा. कौन सा होगा? प्लैटिज्मा मसल. द सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ कार्सिनोमास एंड इज परफॉर्म्ड बाय अ वैरायटी ऑफ स्पेशलिस्ट इंक्लूडिंग जनरल सर्जन्स, endocrine surgeons, oncologists, otolaryngologists. The skin is incised with the blade number 15 and subsequent dissection is performed by electrocautery at the lowest effective setting point. The platysma muscle is inside and the cutaneous flaps are developed in the subplatysma plane. Later on, it is the strap muscle that are retracted in the deeper plane. कौन सा मसल? स्ट्रैप मसल जो होता है that is retracted in the deeper plane. मगर फर्स्ट कट जो बचेगा that will be on platysma muscle. First incision will be on the platysma muscle. Next, which enzyme is responsible for uncoiling of DNA during replication? Uncoiling of DNA, simple answer, helicase enzyme. Okay, uncoiling of DNA is by the DNA helicase, and it is an enzyme that unwinds the DNA double helix by breaking the hydrogen bonds between the complementary bases. The replication fork is formed by two separated or unwounded strands of DNA in the preparation for DNA replication. Hurler's disease result in accumulation of what? Hurler disease, Hurlers disease. It results in accumulation of dermatan sulfate and heparan sulfate. Dermatan sulfate and heparan sulfate, both. ठीक है. Hurler syndrome MPS1 is caused by deficiency of lysosomal enzyme IUDA, which aids in breakdown of dermatan sulfate and heparin sulfate. अब इन दोनों की ब्रेकडाउन नहीं हो पा रही है, ठीक है, जो कि GAG अमीनो एसिड बनाते हैं बेसिकली. दिस फाइनली रिजल्ट्स इन accumulation of large amount of GAG in the body, eventually causing cells to become dysfunctional, leading to cell death. Okay. Next question is, a 5-year-old child with a broad mandible, increased gonial distance and increased gonial prominence, there is increased loss of mucopolysaccharides in urine. He is diagnosed with mucopolysaccharidosis. What is the disease? It is Hurler's disease. ठीक है. Increased gonial angle, increased gonial prominence, increased broad wider mandible. ठीक है. Diagnosed with mucopolysaccharidosis, it is Hurler's disease. Some facts about Hurler's disease. देखो, MPS टाइपिंग जो है हम यूरिन एनालिसिस के बेस पे करते हैं हर्लर्स डिजीज़ के अंदर, ठीक है. उसमें हम एंजाइम ऐसे चेक करते हैं. बेसिकली अगर MPS 1 हम कह रहे हैं तो देयर इज़ अल्फ़ा एल आइडोयूरोडिनेज जिसकी डेफिशिएंसी होती है. अल्फ़ा लीवो आइडोयूरोडिनेज की डेफिशिएंसी होगी, जिसमें हेपरान सल्फेट और डर्मेटान सल्फेट की ब्रेकडाउन जो है वो कम हो जाती है. MPS 2 अगर अब बात आती है, MPS 2 में आइडोरोनेट सल्फेटेज की डेफिशिएंसी हो जाती है. हेपरान सल्फेट और डर्मेटान सल्फेट दोनों इसमें एक्यूमुलेट करना चल जाते हैं. तीसरा MPS 7, इसमें बीटा ग्लूयूरोडिनेज की डेफिशिएंसी होती है. उसमें भी हेपरान सल्फेट और डर्मेटान सल्फेट दोनों की वो डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. नेक्स्ट, अ 30-year-old पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक रीनल फेलियर अंडरगोज अ रेगुलर डायलिसिस हो रही है उसकी. इनिशियली उसके पोटेशियम लेवल्स जो है ठीक थे, ठीक है, लेकिन सडनली क्या हो गया, उसके एलिवेशन इन पोटेशियम लेवल्स हो जा रहा है. तो क्यों पोटेशियम लेवल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं? क्या वो डाइट में ले रहा है जिसकी वजह से पोटेशियम लेवल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं? 4 ऑप्शन दिए, फिल्टर कॉफ़ी, टी, बनाना एंड मीट. बनाना जो है वो लेस कर देगा पोटेशियम लेवल्स. पेशेंट्स विद एंड स्टेज रीनल डिजीज़ आर ऑन मेंटेनेंस डायलिसिस एंड हैव अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया. ठीक है, पोटेशियम लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं बहुत जल्दी. जनरली डिफाइंड एज सीरम पोटेशियम लेवल्स दैट आर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेटर देन 5 मिलीमोल पर लीटर.
ओके ये पेशेंट में हो सकता है बहुत इजीली, particularly those undergoing maintenance of hemodialysis. Currently, the key approaches to management of hyperkalemia in the patient with end-stage renal disease are dialysis, dietary potassium restriction, and avoidance of medications that increase hyperkalemia risk. ठीक है, तो so as to control the potassium levels, हम potassium rich foods जो हैं वो उनको कम कर देते हैं, जैसे कि avocado हो गया, banana हो गया, kiwi हो गया, dried fruits भी हम कम कर देते हैं. ठीक है, बट दिस इज़ ऑन एंड स्टेज रीनल डिजीज़, एंड स्टेज रीनल डिजीज़. ओके, जैसे डायलिसिस रुकेगी वैसे ही ऊपर चला जाएगा. नेक्स्ट, अ 7-year-old चाइल्ड शोज ब्लरिंग ऑफ द विजन, दैट इज KAYSER, केशर फ्लेशर रिंग्स सनफ्लावर कैटरैक्ट. सीरम एग्जामिनेशन विल शो व्हाट. देखो सीरम एग्जामिनेशन इन सनफ्लावर कैटरैक्ट में मिलेगा हमें फेरेटिन, FERRITIN. The normal range of ceruloplasmin serum test in an adult is 20 to 35 milligrams per deciliter. If you have a Wilson's disease, your ceruloplasmin levels will probably go below 10 milligram per deciliter. Wilson's disease is a copper overload disorder that can potentially result in secondary hemochromatosis. The pathophysiological mechanism involve the properties of ceruloplasmin, the important link between the hepatic copper and iron biochemistry. ठीक है, केसर फ्लेशर रिंग्स, सनफ्लावर कैटरैक्ट और ब्लरिंग ऑफ विजन, ये फेरेटिन के लेवल्स इंक्रीज होने की वजह से होता है, और सेरुलोप्लाज्मिन जो है उसके लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं इस विल्सन डिजीज़ के अंदर. किस डिजीज़ में दिखता है ये? विल्सन्स डिजीज़ के अंदर. नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ केसर फ्लेशर रिंग्स एंड द सनफ्लावर कैटरैक्ट दैट आर ऑप्थेल्मोलॉजिकल फाइंडिंग्स, दे आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज लेवल्स ऑफ व्हाट. हमने अभी बात हुई थी विल्सन डिजीज़ की. विल्सन डिजीज़ में कॉपर की एक्यूमुलेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो कॉपर के जो इंक्रीज लेवल्स हैं बॉडी के अंदर, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस. The Wilson's disease is an autosomal recessive disorder of copper metabolism due to mutation of ATP7B gene in the chromosome number 13. Okay, that is 13q14.3. Ocular signs of Wilson disease are sunflower cataract and KF signs. KF sign क्या होता है? Kayser-Fleischer signs. Kayser-Fleischer signs. The KF was described by general ophthalmologist Bernard Kayser in KAYSER Kayser 1902 and Bruno Fleischer FLEISHER in 1903. The Kayser-Fleischer signs or rings are caused by deposition of excess of copper on the inner surface of the cornea in the descent membrane extending to a tubercular meshwork. Copper is deposited as granular complex with sulfur which gives the ring its characteristic color. ठीक है, ये वाला जो रिंग है, ये जो बीच में जो रिंग बन रहा है, this deposition. Sunflower cataract is considered as the second ophthalmologic sign of Wilson disease and has been called a pathognomonic sign of Wilson disease. Sunflower cataract consists of thin centralized opacifications. Thin centralized opacifications located directly under the anterior capsule that encompasses between the 1/3 and 1/2 of the anterior lens pole surface area. 1/3 and 1/2 of anterior lens pole surface area, यहाँ पे sunflower cataract देखा जाता है इस बाउंड्री पे. ठीक है. Next, the transport of fatty acids from cytosol to mitochondria for beta oxidation as shown below is carried out by what? It is carried out by carnitine. Okay, fatty acids का transport from cytosol to mitochondria for beta oxidation, it is carried out by carnitine.